So hey guys, welcome back to my channel Code Genius Riya. In this video, I will discuss another lead code question with you all, that is maximum product of splitted binary tree. So let's start. First of all, what is given to us? Given the root of a binary tree, split the binary tree into two subtrees by removing one edge such that the product of the sums of the subtree is maximized. Okay? So हमें ना मतलब ऐसे एज को एक कट करना है ताकि जो हमें डिफरेंट सबट्रीज मिले ना उनकी दोनों के सम को फिर प्रोडक्ट करना है, फिर जो हमें जो मैक्सिमम प्रोडक्ट मिलेगा उसे रिटर्न करवाना है. ठीक है, फिर तो लिखा है रिटर्न द मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑफ द सम्स ऑफ द टू सबट्रीज सिंस द आंसर मे बी टू लार्ज, रिटर्न इट मॉड्यूलो 10 to the power minus 9 plus 7. I will discuss later what does it mean is. First of all, what is discuss the question or the approach we have to find out. Okay, first of all, as you can see, this is the binary tree given to us. It was given in the example, so I have taken this. Okay, so first of all, what you can think of to cut a binary tree, suppose I am cutting this edge, what I am getting is two subtrees. One is this and another is this. Okay, so these two subtrees I am getting, this one and this one, and you need to find first of all the sum of both the subtrees. That is, if I am getting the sum of this subtree, if I will calculate, what I will get, sum equal to 11, because 4 plus 5 9, and after that 2, that is 11. Okay, and after this, in this case, what I will get is 6 plus 3 9 plus 1 10. Okay, so I am getting 10. So what is the multiplication? That is 110. This is the multiplication of both the subtrees. So what I am getting 110. But suppose what is getting is, suppose I am cutting my edge from different position, that is from this one. In this second case, you can see from here that what I am getting, if I am cutting my subtree from here, what I am getting different two subtrees, that is this one and this one. The sum of the first is 12 and another sum is 9. But if I multiply, what I am getting 108. So if I compare both the subtrees, if I am cutting from the this one edge or I am cutting from the this one edge, I am getting different multiplication or the product. But if I want to get the maximum of it, I am getting this one is the maximum. I have to return this. This is the maximum sum I can get it. Okay, maximum product of the sum. Okay, so what I have to do is simply what I can think of कि हमारे पास ये दो सबट्रीज दिए हुए हैं. फर्स्ट केस हो सकता है कि मैं यहाँ से कट करूँ और दूसरा केस कहाँ हो सकता है कि मैं यहाँ से कट करूँ. ठीक है, तो हमारा टोटल सम पहले मैंने निकाला. ठीक है, टोटल सम निकालेंगे. टोटल सम मीन्स दिस सम ऑफ द ऑल द नोड्स ऑफ ट्री, that is if you are calculating it, you will get a 21. Okay, this is the sum of the all the nodes of a binary tree. Now first of all, suppose I am cutting my tree from this position, that is blue one, that is from this position. If I am cutting this edge, what I am getting my two subtrees, that is this one and another is this one. Okay, I am getting this subtrees. So first of all, what I have done is I am finding the sum of first this one. मतलब कौन सा वाला सम हो गया, ये वाला this one. अगर मैं इसका सम कैलकुलेट करूँ तो what I am getting is 2 plus 4 plus 5, that is 11. हमें फिर ये वाला सम निकालना है, तो मैं सिंपली क्या करूँगी इसके लिए, जो मैं टोटल सम है ना उसमें से स्टार्टिंग वाला सम माइनस कर दूंगी, तो मुझे अपने बचे हुए सबट्री का सम पता चल जाएगा. And suppose that in another case, what I am doing is simply I am cutting my sub edge from here. What I am getting is my different sum equal to 12. And if I want to get the sum, देखो यहाँ इस वाले का मैंने सम निकाल लिया पहले, this is the sum 2. And if I want to know the sum of subtree, so what I am doing simply to subtract from टोटल सम में से जो हमारा बचा हुआ सम आया उसको निकाला. ठीक है, तो मेरा ये आ गया. दिस इज द वे ऑफ अप्रोचिंग माई क्वेश्चन. मैं इस तरह से अपने क्वेश्चन को अप्रोच करूंगी. मैं अलग अलग कैलकुलेट नहीं करूंगी, मैं टोटल सम में से पहले वाले सबट्री का सम आएगा उसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगी. सिंपली मुझे यही करना है. नाउ व्हाट इज द अनदर केस व्हाट आई एम कैन डू इन दिस क्वेश्चन. सिंपली हमें देखो कुछ नहीं करना है. सिंपली मैं क्या करूंगी कि मैंने ना देखो यहाँ पे ना we will use DFS to find out total sum of the tree. This is the total sum of the tree, so we have to use something. Why I am using DFS? Because we have to be traversed to every node of a tree. That's why I am using DFS to come across every edge and find the total sum of a tree. ठीक है, after that I need to find the sum of the subtrees. This one subtree, and if I am cutting from this, so I have to find this one sum. And suppose if I am cutting my subtree from there, so what I need to find out the sum of this subtree and this subtree. For this
आई हैव टू यूज, मतलब हमें बार बार एक चीज को यूज करना पड़ रहा है ना टू फाइंड सम, किसी भी चीज को बार बार यूज करना पड़ता है ना, सो व्हाट वी यूज सिंपली रिकर्जन. That's why I'm using recursion here, and to find the total sum, what I'm using DFS. Okay, why I'm using DFS to come across every edge of a tree or every node. That's why I'm using DFS. ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया है कि simply first of all I am making my answer equal to 0. Answer is the one which I need to return. Return मतलब यहाँ पे मुझे क्या रिटर्न करवाना है, मल्टीप्लीकेशन. ठीक है, आंसर हमें रिटर्न करवाना है, तो इनिशियली मैंने 0 लिख लिया. उसके बाद मुझे क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई हैव रिटन आंसर इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ आंसर. आंसर इनिशियली कितना था, 0. इसमें से और यहाँ तो 11 का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो 11 इंटू 21 माइनस 11, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम कटिंग माई सबट्री फ्रॉम हेयर, मतलब एज मैंने यहाँ से कट करी, तो मुझे इस वाले का सम कितना मिल रहा था 11, तो मुझे बचे वाले का सम कितना मिलेगा 21 माइनस 11. तो मैंने यही लिखा है 11 इंटू 21 माइनस 7. और इस वाले का मतलब क्या है कि सपोज इफ आई एम कटिंग माई सबट्री फ्रॉम हेयर, अगर मैं यहाँ से काटती हूँ तो व्हाट आई एम गेटिंग इज 3 + 6 9. तो सिंपली आई हैव रिटन 9 इंटू 21 मतलब टोटल माइनस 9. ये मैंने लिखा है. आंसर में क्या लिख देंगे हम लोग, मैक्सिमम जो आएगा तीनों में से 0 जो इनिशियल हमारा था उसमें से 110 मतलब एक ट्री काटा मैंने, और 108 ये दूसरा कटा, तो मुझे क्या मिला, आंसर इक्वल टू 110 बिकॉज इट इज द मैक्सिमम ऑल. ठीक है, तो मैंने सिंपली यहाँ से, आप सोच सकते हो कि मैंने यहाँ से क्यों काटा, बिकॉज व्हाट इज रिटर्न टू अस कि हमें सब ट्री कट करना है. तो देखो सब ट्री मतलब कुछ ना कुछ उसके अंदर ब्रांचेस होने चाहिए, तो दैट्स व्हाई आई कट, मतलब रूट वैल्यू है ना, तो उसके दोनों एजेस मैंने काट के देखे, यहाँ से और यहाँ से, और मैंने दोनों केसेस में सम कैलकुलेट करके देखा. ठीक है, तो यही इसका मोटिव था कि यही आप सोच सकते हो कि मैंने यहाँ से क्यों काटा. इसका रीजन मैंने बताया, क्योंकि देखो ये हमारा नोड है ना, ये हमारा रूट नोड है, तो मैंने इसके दोनों एजेस को कट करके देखा ताकि सब ट्री मुझे डिफरेंट डिफरेंट मिले. और जो सब ट्री है, सब ट्री का मतलब क्या होता है कि उसमें ब्रांचेस भी होनी चाहिए, मतलब अगर पेरेंट है तो उसका क्या होना चाहिए, चाइल्ड भी होना चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ सब ट्री होना चाहिए. इट्स व्हाई दैट्स व्हाई आई एम कटिंग फ्रॉम माय रूट. ठीक है, उसके बाद what you can see here, time complexity is big O of n plus big O f. इसका मतलब कि मैंने 2 बार big O of n क्यों लिखा है, बिकॉज ये डूइंग द 2 ट्रेवर्सल, यहाँ पे हम लोग 2 ट्रेवर्सल कर रहे हैं, एक हमको फाइंड करने के लिए और दूसरा फॉर आंसर. देखो सम मतलब यहाँ पे हम ट्रेवर्सल फाइंड आउट कर रहे हैं ना, टोटल सम. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन सम. व्हाट आई एम डूइंग इज फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम फाइंडिंग द सम ऑफ ऑल द नोट्स दैट इज प्रेजेंट, मतलब जितने भी नोट्स है ना उसके सम को फाइंड आउट करने के लिए. और दूसरा क्या है, हमारे आंसर मतलब द मैक्सिमम ऑफ बोथ द सब ट्रीज दैट आई एम गेटिंग. इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि दूसरा हमें सम. अब यहाँ देख सकते हो आप, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैंने क्या लिखा है, बिग O of n प्लस बिग O of n. इसका मतलब क्या है, व्हाट यू कैन सी कि 2 बार बिग O of n आता है ना, इसको हम लोग कह सकते हैं इक्वल ऑफ टू बिग O of n. आप ऐसे सोच सकते हो इसको. ठीक, लेकिन अगर आपको पता होगा, आपने सीखा होगा, तो जब भी हमारा कांस्टेंट आता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, तो हम लोग उसको कांस्टेंट को नहीं गिनते हैं. इसका मतलब इसी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O of n ही कैलकुलेट की जाएगी. ठीक, और n क्या है, यहाँ पे मैंने लिखा n इज द नोड ऑफ द ट्री. ठीक है, तो यही बहुत इजी वे से मैंने आपको बताया. इसके कोड की तरफ चलते हैं. सो व्हाट आई एम डूइंग इज, यहाँ पे मैंने 2 नाम लिए हैं, एक आंसर एक टोटल सम. ठीक है, तो लॉन्ग आंसर है, टोटल सम लिए. आंसर क्या है, हमारा जो आंसर जो हमें लास्ट में हमें इनकाउंटर करना है उसके लिए है, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैक्सिमम. यहाँ पे लिखा था ना मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑफ स्प्लिटेड बाइनरी ट्री, तो उसका जो मैक्सिमम प्रोडक्ट है उसके लिए फाइंड आउट कर रहे हैं. टोटल सम क्या है, इनिशियल 0 लिया है. इसका मतलब क्या है कि मतलब हर एक नोड है ना हमारे ट्री का, उसका सम फाइंड आउट करने के लिए, दैट इज द सम ऑफ द ऑल द नोड्स ऑफ ए बाइनरी ट्री. ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, ये हमारा फंक्शन था, तो उसके अंदर मैंने क्या यूज किया, टोटल सम के लिए मैंने आपको बताया DFS यूज किया. DFS क्यों लिया, बिकॉज वी हैव टू ट्रैवर्स ऑल द नोड्स ऑफ ट्री, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग DFS हियर. तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या दिया कि देखो टोटल सम में DFS पुट कर दिया पहले इनिशियली वैल्यू, और मैंने फिर उसके बाद इसको DFS को कैलकुलेट कर लिया, मतलब रूट की जो जितनी हर एक रूट पे जाएगा और DFS की ये हर एक मतलब कैलकुलेट कर लेगा उसका सम. ठीक है, अब क्या है, हमें यहाँ पे रिटर्न आंसर करवा दिया है. इसका मतलब क्या है, इस वाली लाइन का ये पहली बात तो इंट है, क्योंकि हमें जो आंसर आएगा वो इंटीजर सही है. इसके बाद इसका मतलब क्या है, आंसर को ना रिमाइंडर से करो इंट 1e9 प्लस 7. 1e9 का मतलब क्या होता है कि 9 बार 0, इसका मतलब ये होता है उसमें प्लस 7 करो. इससे क्या होता है कि हमें
रिजल्ट होता है ना, ये इंश्योर करता है कि जो हमारा रिजल्ट है वो इंटीजर की रेंज में ही आता है, क्योंकि ये भी पॉसिबल है कि हमारा जो आंसर है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो, उसको रिटर्न करवाने में दिक्कत आएगी। इसलिए मैंने क्या किया, इससे रिमाइंडर निकालेंगे। रिमाइंडर का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ की आखिरी प्लस मतलब आखिरी वाली वैल्यू होती है ना, वो फाइंड आउट करने के लिए होता है। जैसे कि इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, सपोज मैंने लिया कि इफ आई एम टेकिंग 1 0 और 9 सपोज ले लिया, इसका अगर रिमाइंडर निकालेंगे हम, सपोज आई एम टेकिंग रिमाइंडर फ्रॉम 10, अगर 10 से निकालेंगे ना तो इसकी लास्ट वाली जो वैल्यू आएगी ना वो आ जाएगी, दैट इज 9। ठीक है, 9 आ जाएगा। तो सिंपली रिमाइंडर का मतलब यही होता है टू फाइंड आउट द लास्ट डिजिट। ठीक है, ऐसे ही होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे रिटर्न, यहाँ पे आंसर रिटर्न करवा दिया। और यहाँ पे डीएफएस में क्या किया मैंने, अगर सपोज कोई है ही नहीं, कुछ नल है, तो रिटर्न 0 करवा देंगे। और करंट सम, जो करंट सम में मैंने क्या दिया, डीएफएस रूट डॉट लेफ्ट प्लस डीएफएस रूट डॉट राइट प्लस रूट वैल्यू। इसका मतलब क्या है, कोई भी जैसे ये ट्री है हमारा, तो उसमें क्या होगा, सम टोटल सम निकालना है हमें, तो उसका लेफ्ट प्लस राइट प्लस इसकी रूट वैल्यू, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सम। ऐसे ही सम हमेशा कैलकुलेट किया जाता है, उसकी लेफ्ट वैल्यू और राइट वैल्यू प्लस उसकी रूट वैल्यू। ठीक है, फिर आंसर क्या है, मैथ डॉट मैक्स। इसे मैंने आपको बताया था, इसमें आंसर आएगा उसमें जो करंट सम है और टोटल माइनस करंट सम, यू कैन सी फ्रॉम हेयर। तो मैंने सिंपली यहाँ पे क्या था, आंसर लिखा था पहले, और यहाँ पे ये क्या है, हमारी 11 जो करंट वैल्यू आ रही है, और टोटल सम में से करंट वैल्यू को माइनस कर दिया। तो ये वे है निकालने का। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया। तो सिंपली मैंने यही किया है, और लास्ट में हमने करंट सम को रिटर्न करवा दिया है। तो इजी सॉल्यूशन मैंने बताया, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू।